Namaskar and good evening to all. In the monthly series of Education for Life by Ditya and Tech Pro Plus, Trigen Technologies, today in the month of November, we have the topic to discuss Panchmukhi Shiksha, revisiting tradition to design the future. The recording of earlier sessions are available at Ditya's website, ditya.education. Before we move further, let me mention you about the significance of today, the date 26/11. Today is the Constitution Day of India, also known as National Law Day. Today in the year 1949, the Constituent Assembly of India adopted Constitution of India, which subsequently came into effect on 26 January 1950. This date, 26/11, cannot be forgotten. Today is the 14th anniversary of Mumbai terror attack. On 2nd November 2008, terrorists brutally killed more than 170 Indians, including security personnel. We pay tribute to the people, those who lost their lives, and martyrs who laid down their lives while fighting terrorists. I reiterate the message from Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. We consider that even a single attack is one too many. Even a single life lost is one too many. So we'll not rest until terrorism is uprooted. Now coming to today's program, let me introduce today's guest and eminent speaker. I welcome Professor Rajiv Sangal. Professor Rajiv Sangal is a former director, IIT BHU, IIIT Hyderabad. He's a graduate in electrical engineering from IIT Kanpur, then MS and PhD in computer and information sciences from University of Pennsylvania. He has written 5 books. He's one of the biggest. His one of the biggest contribution is to formally and assertively introduce student induction program and universal human values in education sector. We welcome Professor Rajiv Sangal, sir. Namaskar. The second guest and speaker for today's session is Professor Ina Shastri, Vice Chancellor, Vanasthali Vidyapeeth, which is world's largest residential university for women. Professor Ina Shastri is a recipient of the Real Superwomen Award in year 2021. She has been featured in the book The Phenomenal Sea, released by Indian National Bar Association on the occasion of International Women's Day. The book acknowledged 100 influential women for their outstanding contributions in various walks of life. We welcome Professor Ina Shastri. We know that all matter is composed of 5 basic elements, Panch Tattva, which inherit the properties of earth, Prithvi, water, Jal, fire, Tejas, wind, Vayu, and space, Akash. And each element is influencing our life, personality, characteristics. We usually say life has 5 pillars, which is family, friends, kindness, honesty, humanity. But the foundation is always love. Now coming to today's topic, Panchmukhi Shiksha, which comprises of 5 elements: physical, emotional, psychological, intellectual, and spiritual. Now I'm coming to Professor Rajiv Sangal. What is the purpose of life? We cannot say the education is merely for livelihood. The purpose of education is to build the life. So first part of the question is this, and then coming to how do you conceive the concept of Panchmukhi Shiksha in the light of ancient wisdom? Professor Rajiv. Thank you, Puneet ji, and namaskar to Ina Shastri ji and to all the audience. जब मैं देखता हूँ कि हमारे सामने मानव की जिंदगी, उसमें कितना कुछ किया जा सकता है और उस जिंदगी को हम पूरे रूप से जिएं, इसके साथ ही हमारी मन में एक
अनुभूति हो, हम खुशी से सुख से जिए, ये हर व्यक्ति चाहता है। और शिक्षा का ये उद्देश्य है कि हर व्यक्ति अपना जो पोटेंशियल है उसको रियलाइज करे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि शिक्षा के माध्यम से हमारे अंदर जो डिविनिटी है वो हमारे एक्सप्रेशन में आ जाए, हमारे जीने में आ जाए। तो सवाल यही है कि जब हम कहते हैं हम सुख से जिए, तो उसमें सुख से क्या अर्थ है? तो उसका जो पहला चीज उसमें जो आती है कि भाई हम अपने शरीर का पालन पोषण कर पाए। भोजन, तेज सर्दी है तो उससे बचना, और शरीर को बचा के रखना, और शरीर की संवेदनाएं हमको ये बताती हैं कि हम ठीक हैं कि नहीं। तो जिसको कहा जाता है कि लाइवलीहुड, एजुकेशन फॉर लाइवलीहुड, ये इसके लिए हम ये अच्छे से ये काम कर पाए, अपने लिए ही नहीं, अपने परिवार के लिए। तो ये इसका एक पहला हिस्सा है। लेकिन अगर सुख से जीना, क्या इससे हमें सुख मिल जाएगा? इससे जानवर तो सुख से जी पाएगा, क्योंकि उसके लिए सुख का शायद वही अर्थ है, लेकिन मानव के लिए ये पूरा नहीं पड़ेगा। जो सोचते थे कि हम ये प्लेजर में जिएंगे तो हमारी जिंदगी पूरी हो जाएगी, वो उनको पता, खुद ही पता चलता है कि ये तो अधूरी रह गई। और जब पता चलता है तो कहते भी हैं वो लोग कि अरे बहुत देर हो गई। तो और क्या चीजें हैं, ये सुख से क्या अर्थ है? तो सुख की अगर पूर्णता में जाएंगे तो संबंध आते हैं इसके बाद, कि हम संबंधों में जिए। अपने परिवार के साथ संबंध, अपने मित्रों के साथ संबंध, अपने काम की जो जगह है वहां पर कुलीग्स हैं उनके साथ अच्छे संबंध। तो ये संबंधों में हम जिए, और इसमें सम्मान, विश्वास, प्रेम, प्रेम अल्टीमेट मूल्य है जिसमें ये सारे मूल्य निहित हैं। तो ये सब हम पूरा तरह से जिए। इसके और आगे जाते हैं तो समाज। अगर हम परिवार में अच्छे से जिए, बहुत बढ़िया बात है, पर फिर लगता है कि अरे नहीं, अभी हमें और भी कुछ करना है। तो जब हम और कुछ करने जाते हैं तो हम समाज इसमें आता है, और समाज से अर्थ है कि मेरे चारों तरफ जो लोग हैं पहले उनके साथ, और बड़ा समाज देखेंगे तो मेरा शहर, और उससे बड़े में जाएंगे तो जिला, प्रदेश, पूरा देश, राष्ट्र, और फिर कहेंगे अंतरराष्ट्र, पूरी दुनिया। तो ये हमारे जीने के आयाम हैं, और इन सभी आयामों में हमारी इच्छा है कि हम कुछ अच्छा करें। ये होना चाहिए वर्ड मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये है ही, हर व्यक्ति ये चाहता है ही। जब वो कर नहीं पाता है तो कहता है कि अरे ये मैंने गलत कर दिया, पर क्या करता, और कोई चारा नहीं था। तो आदमी सुख से जीना चाहता है, उस सुख को प्राप्त कैसे करेगा? जब वो अच्छे से जिएगा स्वयं में, स्वयं के शरीर के को लाइवलीहुड के लिए, फिर अपने परिवार के लिए, परिवार में संबंध, और फिर समाज, और फिर प्रकृति तो आ ही जाती है। तो ये हमारे जीने का आयाम हो गया। तो इसको हम कहेंगे कि एजुकेशन इज फॉर लाइफ। ये पूरा जिंदगी जो है, उसके जितने भी आयाम हैं, इन सबको ये छुए, इन सब में हमें ये सिखा सके कि हम इसमें और अच्छे से कैसे जिए। तो ये एजुकेशन फॉर लाइफ हुई। लेकिन दुख की बात है कि शिक्षा को आजकल समझ लिया है कि आजीविका के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर लाइवलीहुड, मुझे क्या जॉब मिलने वाला है। जॉब तो मिल ही जाएगा, वो बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन बड़ी चीजें छूट जाती है। तो उसमें कि हैविंग लो गोल्स इज ए क्राइम। ये किसके खिलाफ क्राइम है? ये स्वयं के प्रति क्राइम है, स्वयं के प्रति अपराध है। क्योंकि हमारा जो पोटेंशियल है, हमें जो योग्यता है, मानव रूप में जो हमें मिला है, हम उसका पूरा उपयोग नहीं करें, तो ये हमारे लिए एक हमसे अपराध हो रहा है अपने प्रति। तो इसको इस तरह समझे कि लाइवलीहुड से ऊपर उठ के हम बाकी सारे सब चीजों से जुड़ जाएं, और एक पूर्णता में हम जिए। और शिक्षा का यही उद्देश्य है कि इसमें ये हमें सिखा सके कि हम हर आयाम में कैसे अच्छे से जिए, मात्र लाइवलीहुड में ही नहीं, बल्कि संबंधों में, समाज में, पूरे अंतरराष्ट्र में, और प्रकृति के साथ।
तो इसमें पंचमुखी शिक्षा इन सबको जोड़ती है, मानव को तैयारी देती है कि हर आयाम, चाहे वो आर्ट का हो, चाहे स्किल्स का हो, चाहे वो कैरेक्टर हो, ये सारी चीजों में शिक्षा हो और आदमी पूर्णता में जिए और पूर्णता से सुख को सुखपूर्वक काम कर सके। तो सुख की प्राप्ति अपने आप होती है, सुख के पीछे नहीं भागते हैं, सुख हमारे पीछे भागता है। तो मैं अब यही रोक देता हूँ। जी सर, आपने सही कहा। आनंद की प्राप्ति ही जीवन का अल्टीमेट एम है, उद्देश्य है। पूरी जीवन की यात्रा आनंद से, हंसी खुशी के साथ चले, क्योंकि हम इंजीनियरिंग में हर चीज को प्रोसेस से नापते हैं, प्रोसेस से आकलन करते हैं। हर कोई भी कार्य हो, चाहे फसल उगानी हो, तो आप उसकी भी एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, और वो प्रोसेस ठीक से किया तो एंड रिजल्ट बाय डिफॉल्ट अच्छा होता ही है। लेकिन मैं फिर वापस अभी पंचमुखी शिक्षा के जो एलिमेंट है, हमने जो 5 एलिमेंट्स की बात की, फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल, इसमें जो मैं आजकल देखता हूँ कि जो चयन की प्रक्रिया होती है करियर की, वो प्लेसमेंट सबसे पहला होता है। चाहे वो विषय हो, चाहे कोर्स हो, या फिर कॉलेज हो। तो रिवर्स लोग सवाल पूछते हैं, मैं क्या सीखूंगा, क्या मैं प्राप्त कर पाऊंगा, वो नहीं होता है। मुझे एंड रिजल्ट क्या मिलेगा, चाहे वो पेरेंट हो, चाहे बच्चे खुद हो, उनका ओरिएंटेशन मोरलेस इसी तरह की कम्युनिटी टाइप एक्टिविटीज का बन गया है। तो मैं वापस से यहीं पर जो हमारा जो एंशिएंट विजडम है, एक बार उस पर फिर से आपको लाना चाहूंगा कि जो हमने 5 एलिमेंट की जिक्र की पंचमुखी, वो कैसे एक व्यक्ति का या व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं जो रिलेवेंट है इवन टुडे। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि जो मैंने बात कही है पूरी एंशिएंट विजडम पर ही वो आधारित है। हमारे मध्यस्थ दर्शन के आधार पे मैंने बात की है, जो भारतीय दर्शन है। और उस दर्शन में ये जो हैप्पीनेस या आजकल जो प्लेजर की बात हो रही है, वो उसको मान्यता दी गई है कि भाई अगर हम खाना खाएं तो हम ऐसा खाएं जो शरीर के लिए भी पोषक हो और स्वाद में भी अच्छा हो, क्योंकि हमारी जिह्वा हमको बताती है कि कब वो चीज हमें अच्छी है या कब सड़ गई है। तो उसका वो वहां से रोल शुरू होता है। और जानवर तो इसी काम के लिए है, लेकिन मानव में एक स्टेप ऊपर चले गए, जहां पे हम स्वाद को पहचानते हैं, खाली अच्छे खराब के लिए नहीं, पर अपने रुचि के लिए। तो इसका उपयोग हम अच्छे से कर सकते हैं। तो पंचमुखी शिक्षा या हमारी जो ट्रेडिशनल विजडम है, उसमें प्लेजर को कभी नेगेट नहीं किया गया है, इसको एक हिस्सा माना गया है एक पूर्ण जीवन में, पूर्ण जीवन जीने के लिए। और उसमें ये अपने आप पता लगेगा कि ये एक बहुत छोटा सा और आसान हिस्सा है। अब दिक्कत क्या हो गई है, इस आसान चीज के पीछे ऐसा भाग रहे हैं कि बड़ी चीजें छूट रही हैं, और जब बड़ी चीजें छूट जाती हैं तो हमको फिर आनंद नहीं मिलता है। हम फिर चिंता में, अवसाद में, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इन सब के लिए तो पंचमुखी शिक्षा, जिसमें फिजिकल भी है, प्रैक्टिकल भी है, एस्थेटिक, मॉरल, इंटेलेक्चुअल, ये बिल्कुल आयाम है। ये 5 मुख हैं, और इन सभी मुखों पे शिक्षा में इनका स्थान रहना चाहिए और इसका और जोरों से आना चाहिए। जैसे आजकल इसमें मैं कहूं तो इंटेलेक्चुअल पे बहुत जोर है, बाकी चारों चीजें छूट गई हैं। फिजिकल में भी, स्पोर्ट्स में भी वो कंपटीशन वाला भाव आ गया है, और स्पोर्ट्स का जो मजा है ना, वो कहीं छूट रहा है। कहीं हमारे हाथ से खुशी फिसल के जा रही है, क्योंकि हम कुछ गलत चीजों के पीछे भागने लग गए। तो हम पंचमुखी शिक्षा अगर करते हैं, उसमें हमारे विद्यालयों में, हमारे यूनिवर्सिटीज में इसके आधार पे अगर करिकुलम डिजाइन होता है, तो उसमें फिर प्रैक्टिकल चीजें तो होंगी ही, एस्थेटिक, मॉरल, इंटेलेक्चुअल के साथ में एस्थेटिक और मॉरल रहेगा, और वो ही हमको हमारी समझ बढ़ाता है। स्पिरिचुअलिटी हमें हमें और चीजें समझने का मौका देती है। इस रूप से अगर देखें तो फिर हम पूर्णता की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। Thank you, sir. Rightly said, the means of joy or meaning of joy has been misunderstood, and result has been taken as a means of joy rather than process and the journey.
And journey, of course, it includes various elements. Rightly said, it is not merely intellectual part. It comprises of various other activities. Now coming to energy, relevance of Panchmukhi Shiksha in the present time and future. Banasthali has been exercising since long the elements of Panchmukhi Shiksha in their own way. So your take on the relevance of Panchmukhi Shiksha for today and future generation. जी पुनीत जी, अभी राजीव सिंघल जी को हमने सुना है, उन्होंने बहुत सटीक बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है, जिससे मैं पूरा इत्तेफाक रखती हूँ। देखिए, दुनिया को आज युवाओं की जरूरत है, और ऐसे युवा जिनमें सत्य हो, प्रेम हो, आपसी भाईचारा हो, और सबसे बड़ी बात जैसे सर ने भी कही है कि यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज हो, जिसकी कमी अभी आज हमें बहुत देखने को मिलती है। और ऐसे लोग हो कि जो आसपास के वातावरण के प्रति संवेदनशील हो, ऐसे युवाओं की जरूरत है, जिसकी कमी हमें आज के वातावरण में बहुत देखने को मिल रही है। और जैसे विष्णु पुराण में भी कहा गया है, सा विद्या या विमुक्तये, शिक्षा वह है जो मुक्ति देती है। जैसे कि दार्शनिक विचारकों ने भी समझाया है हमें कि स्वयं को प्रबुद्ध और मुक्त करना यह उसी स्थिति में संभव है जब शिक्षा स्वयं व्यवहारिक हो। हम व्यवहार में शिक्षा को लाएं। सिर्फ बुद्धिमत्ता से काम नहीं चल सकता, सिर्फ आपकी इंटेलेक्चुअल एजुकेशन से आपको काम नहीं बन सकता। आप उस शिक्षा को अप्लाई भी करें, उसको अपने व्यवहार में भी उसको लाएं, तभी वो सक्षम हो सकती है, तभी सही हो सकती है। आपने बात करी कि हम वनस्थली में इसको अपना रहे हैं। जैसे कि हमने देखा कि अभी व्यवहारिक शिक्षा अगर व्यक्ति में या युवाओं में मानवीय मूल्य होंगे, परिस्थितियों को समझने की शक्ति होगी, व्यवहार में लाने की शक्ति होगी, व्यवहार में ला सकेंगे, तो जैसे कि अभी हमने पैंडेमिक को हमने देखा है, कैसी विषम परिस्थितियां आई थी और समय समय पर आती भी रहेंगी, आती भी रहती हैं, कुछ आपदाएं आती रहती हैं। उन विषम परिस्थितियों में हमारे जो विद्यार्थी हैं वो कैसे उन परिस्थितियों का सामना करें, इसके लिए हम प्रिपेयर नहीं करते हैं। तो हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, वो हर परिस्थिति में वो उनको कैसे फेस करना है उसके लिए उनको प्रिपेयर किया जाए। आपने वनस्थली विद्यापीठ की बात करी, वहाँ की एजुकेशन की। हम इन 5 तत्वों को, इन 5 एलिमेंट्स को, इन कहना चाहिए कि 5 फोर्स को हम अपने व्यवहार में लाते हैं। हमारी शिक्षा का एक भिन्न अंग है ये, जिसमें कि शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, व्यवहारिक और सौंदर्यपरक, साथ ही नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा आज के समय में बहुत ही हमें कम देखने को मिल रही है। बच्चे जो हैं वो नई पाश्चात्य संस्कृति की ओर ज्यादा उन्मुख हैं। तो भारतीय संस्कृति हमारी कितनी रिच है, कितना उसमें सब चीजें समाहित हैं, वो हमें बताने की कहीं ना कहीं आवश्यकता होती है, और है भी। हम देखिए वनस्थली जो है वो कि नर्चरिंग वुमेन लीडर्स इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, जिसमें कि आप देखिए कि मीरा कुमार जो हैं पहली महिला स्पीकर, वो वनस्थली की छात्रा रही हैं। इसके अलावा सुमित्रा सिंह जी जो कि राजस्थान की स्पीकर रही है, वो वनस्थली की स्टूडेंट रही हैं। पहली मैराथन रनर फिजिकल एजुकेशन की हम बात करें, श्रीमती सुनीता गोदारा, वो वनस्थली रही हैं। इसके अलावा अवनी चतुर्वेदी, ये क्रम अभी तक भी चालू है, जो कि फ्लाइंग ऑफिसर हैं, जबकि एयरफोर्स में जो पहली महिला फाइटर जेट पायलट बनी है वो अवनी चतुर्वेदी हैं। कि देखिए इन्होंने अपनी कहना चाहिए कि संज्ञानात्मक शिक्षा के साथ साथ इंटेलेक्चुअल एजुकेशन के साथ साथ 5 फोल्ड एजुकेशन में हिस्सा लिया, शारीरिक शिक्षा में हिस्सा लिया, नैतिक शिक्षा में हिस्सा लिया, और अब देखिए वो अपने मेन स्ट्रीम से हटके दूसरी चीज में प्रोफेशन उन्होंने अपनाया है। तो कहीं ना कहीं ये शिक्षा, जैसे कि सर ने जिक्र किया था, कि रोजगार उन्मुख भी बनाती है। तो 5 फोल्ड एजुकेशन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इंटेलेक्चुअल एजुकेशन लेके ही आप रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, आप व्यवहारिक शिक्षा लेकर भी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। प्रैक्टिकल एजुकेशन जिसकी बात हम करते हैं, जो कि आपको कौशल सिखाती है, कुशलता सिखाती है किसी क्षेत्र में, आप उस क्षेत्र में भी जा सकते हैं। ये तो 2-3 नाम मैंने गिनाए हैं, ऐसी बहुत सी हमारी छात्राएं हैं जो कि मेन स्ट्रीम से हटकर दूसरे क्षेत्रों में भी बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत अच्छा नाम कमा रही हैं। तो पंचमुखी शिक्षा की प्रासंगिकता तब भी थी, अब भी है और फ्यूचर में भी रहेगी। मैं वापस आप ही से शुरू करता हूँ इना जी। घर जो है वो पहला शिक्षण संस्थान होता है, पहली लर्निंग का प्रोसेस है। वहां से आप बाय ऑब्जर्विंग अदर्स, योर फैमिली मेंबर्स, यू लर्न। इसीलिए देखते हैं कि हम जो जिस तरह से बोलते हैं वो परिवार के जो अग्रज हैं उनके बोलने की शैली ही हमारी शैली में रिफ्लेक्ट होती है।
तो स्कूल एजुकेशन यानी कि घर वाली जो स्कूल एजुकेशन है उसका रिलेवेंस कितना है और किस तरह से वो इम्पैक्ट करता है एक घरेलू वातावरण एक व्यक्तित्व के निर्माण में, हाँ। क्योंकि सबकॉन्शियस लर्निंग है उस वक्त। जी जी बिल्कुल। देखिए, कहा जाता है कि बच्चे की पहली पाठशाला जो है वो घर ही होता है। और जैसे कि हम अपने पुराणों को हम देखें, गीतोपदेश को अगर हम देखते हैं तो उसमें मित्र लाभ में कहा भी गया है कि मातृ पितृ कृताभ्यासो गुणीतामेति बालकः न गर्भच्युति मात्रेण पुतो भवति पंडितः। अर्थात माता पिता द्वारा सिखाया गया बच्चा योग्य हो सकता है, योग्य होता भी है। और जो ऐसा नहीं है कि बच्चा पैदा होते ही विद्वान पैदा होते हैं, तो पहली शिक्षा जो माता पिता देते हैं, जो संस्कार माता पिता या दादा दादी उनको परिवार में देते हैं, वो संस्कार ही उनको एक दिशा प्रदान करते हैं जिसमें कि वो अपनी औपचारिक शिक्षा जो विद्यालय में प्राप्त करते हैं उसके द्वारा वो समृद्ध होते हैं। अब देखिए, घर में शुरुआत की जो बोलचाल है जिसको मदर टंग भी बोलते हैं, कैसे बातचीत की जाए, क्या रिलेशंस होते हैं, सोशल आपके क्या रिलेशंस होते हैं, कौन बुआ है, कौन फूफा है, कौन मामा है, ये सब हमें अपने घर की पाठशाला में ही बच्चे सीखते हैं। कैसे हमें बड़ों के साथ सम्मान करना है, कैसे छोटों के साथ व्यवहार करना है, कैसे बराबर के बच्चों के साथ हमें व्यवहार करना है, ये सब परिवार की जो पाठशाला है वहीं बच्चा सीखता है। और इमोशनल उनको एक कहना चाहिए कि सराउंडिंग, एक इमोशनल बॉन्डिंग जो है उनको परिवार से ही मिलती है। माँ की मदद कैसे करें, देखिए हम खुद को नहीं जानते कि हम फीता कैसे बांधे, कैसे खाना खाया जाता है, अपने आप कैसे हम कार्य करें, छोटी छोटी चीजें जो कि व्यवहार में उनको आगे जिंदगी भर अपनानी है, वो पहली पाठशाला उनकी विद्यालय होती है, वहीं उनको संस्कार डलते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि बच्चे अपने माता पिता को अपना आइडियल मानते हैं, जैसे माता पिता हैं वैसे ही बनना चाहते हैं। इसलिए माता पिता की और अपने घर वालों की बहुत जरूरी हो जाता है कि वो हम कैसा व्यवहार बच्चों के सामने करें, हम जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही वो अडॉप्ट करेंगे। वो सोचते हैं यही चीज है, हम अच्छा व्यवहार, अच्छे संस्कार, अपने बुजुर्गों को सम्मान देना, ये सब संस्कार अगर हम नेचुरल वे में अपना कर बच्चों को दिखाते हैं तो बच्चे भी उस चीज को अडॉप्ट करते हैं और उसमें आगे बढ़ाते हैं। तो निस्संदेह ही जो परिवार है वो उनकी पहली पाठशाला होती है और माँ बाप को सीख सकते हैं। तो आज के दौर में जब खास तौर से न्यूक्लियर फैमिलीज जी जी बन गई हैं, चाहे बाय चॉइस हो या कोई परिस्थितिवश हो कि बड़े शहरों की भागदौड़ और उसके कारण दोनों माता पिता जब सर्विसेज में हैं तो समय निश्चित तौर पर नहीं दे पाते हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं जो हमने अपने प्रोग्राम की आज शुरुआत की कि मुंबई टेरर अटैक की से बात की, तो उसमें भी जो टेररिस्ट थे वो ह्यूमन बीइंग ही थे। कहीं ना कहीं फाउंडेशन में कुछ ना कुछ एरर थी, कुछ गलतियां थी जिसके चलते उनको सही और गलत का भास नहीं था। और वो कोई स्कूल नहीं सिखा सकता, वो आपके प्रथम पाठशाला जो है स्कूल घर, वहीं से शुरुआत होती है कि सही क्या है और गलत क्या है, या कोई चीज जो सिर्फ मुझे लाभ दे रही है और दूसरे को नुकसान दे रही है वो सही कैसे हो सकती है। एक इतनी छोटी सी बात है जो कैसे पता नहीं लोग सोच पाते हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो भी क्राइम रेट बढ़ी है या डिसप्लेजर है या जो भी एलिमेंट्स हैं सोसाइटी में जो बढ़ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये बात जड़ में है कि माँ बाप का बच्चों के प्रति समय कम दे पाना या जो इनिशियल वर्ष है, शुरुआती वर्ष है, उसमें समय साथ नहीं व्यतीत कर पाते, जिसके कारण वो इस तरह की स्थिति में आ जाते हैं। कमिंग टू जी, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अगर हम अच्छा वातावरण बच्चे को नहीं देंगे तो हमने देखा है, मेरा जो अनुभव रहा है, हमने एमएड में पढ़ा था कि अगर बच्चे को सौहार्दपूर्ण वातावरण नहीं मिलता है, उसको पारिवारिक परिवेश अच्छा नहीं मिलता है, उसको कहना चाहिए कि एक सुरक्षित वातावरण नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं उसके पर्सनालिटी में आगे जाके वो रिफ्लेक्ट होता है और उसके व्यक्तित्व में वो दिखाई देता है। अब जब मैं 30 साल का अनुभव और पढ़ाने का और एडमिनिस्ट्रेशन का है तो मैं ये चीज अनुभव कर रही हूँ कि जो हमने पढ़ा था वो वाकई में देखने को मिलता है। जो बच्चे अच्छे परिवेश में बड़े बड़े हैं वो अच्छा कर रहे हैं, जहाँ कहीं उनके पारिवारिक बैकग्राउंड थोड़ी सी वीक रही है या कुछ ना कुछ उनमें ऐसा रहा है तो वहाँ कहीं ना कहीं ये कमी देखने को मिलती है। जी, राजीव सर आपके पास आता हूँ। स्कूल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन की पहली शुरुआत है और चूंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि शुरुआती वर्षों में कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम अलग रहा और बाद के कॉलेज एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करें, तो मिसमैच होगा, तो फिर वो बात ठीक से बन नहीं पाएगी, क्योंकि बैटन रेस में पहला दूसरा धड़ जो है स्कूल का है। तो किस तरह से स्कूल एजुकेशन में
इम्प्लीमेंट, इसकी नेसेसिटी कितनी है और इसको इम्प्लीमेंट किस तरह से कर सकते हैं पंचमुखी शिक्षा को। राजीव सर। इसमें जैसा अभी कहा कि पहली शिक्षा परिवार में होती है, और स्कूल का अगर शुरू के कुछ वर्ष अगर देखें दूसरी कक्षा तक विशेष रूप से, तो वो भाव का समय है। जो बच्चा है वो एक भावपूर्ण वातावरण में बड़ा हो, उस वातावरण में विश्वास हो, सम्मान हो, ममता हो, वात्सल्य हो और प्रेम हो। ऐसे वातावरण में अगर बच्चा बड़ा होता है, वो उसकी नींव रखता है बच्चे की, और वो नींव इसमें बड़ा होके वो बच्चा उस पे बहुत आगे जा सकता है, और गलत काम करने से पहले वो 10 बार सोचेगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूं। तो जब बच्चा एक सिक्योर वातावरण में बड़ा हो रहा है, भावपूर्ण वातावरण में बड़ा हो रहा है, तो उसमें मैत्री एक बड़ी चीज हो जाती है। कंपैशन जिसकी बहुत बात आजकल हो रही है, उसकी नींव भी उसी समय पड़ती है। ये मानव में बिल्ट इन है, लेकिन वो उन वर्षों में परिवार में और फिर स्कूल में, खासकर प्रारंभिक समय में इसका ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वैसे अगर लर्निंग या सीखने की प्रक्रिया को देखें, तो बच्चा जो है वो अनुकरण अनुसरण से शुरू होता है। जो वो देखता है बड़े लोगों को करते हुए, जिनको वो श्रेष्ठ मानता है, अपने माता पिता को बच्चा श्रेष्ठ मानता है, अपने से बड़े लोगों को श्रेष्ठ मानता है, तो वो लोग जो कर रहे हैं उसको वो भी करने का प्रयास करता है। तो ये अनुकरण और अनुसरण की स्टेज है, और इसमें भावपूर्ण वातावरण में आगे बढ़ते हुए वो बहुत सारी चीजें सीख जाता है, और तब समय आता है कि अब वो प्रश्न भी पूछना चाहता है, वो कुछ चीज समझना चाहता है, तो वो पूछता है ऐसा क्यों। और वो समय है जब अनुशासन आ जाता है, क्योंकि वो एक छोटी कक्षा से निकल के थोड़ी बड़ी कक्षा में जा रहा है, तो स्कूल का अनुशासन आता है। पर वो बच्चा अनुशासन को स्वीकारने को तैयार है, उसको अपोज नहीं करेगा। वो सिर्फ जानना चाहता है कि ऐसा क्यों, ऐसा नियम क्यों है। अगर उसमें उसे कुछ कठिनाई दिखती है तो वो पूछेगा भी, और आपके उत्तर की उसको अपेक्षा है, अध्यापकों से, अपने परिवार वालों से। तो जो स्कूल का, जो मैं कहूंगा स्कूल का जो समय है, वो भाव से आगे निकल के अनुशासन, और अनुशासन क्यों है, क्यों का जो प्रश्न आजकल बच्चे और ज्यादा पूछने लगे हैं, इसलिए मैं इसको विशेष महत्व दे रहा हूं। तो वो बच्चे, चाहे वो छोटे हों, चाहे 8वीं में हो, और चाहे उच्च शिक्षा में भी यही प्रश्न आते हैं, लेकिन स्कूल की हम बात कर रहे हैं, तो अनुशासन में नियम का अर्थ पता लग जाए, और बच्चे को जब लगेगा कि नहीं ये मेरे काम की चीज है, ये पूरे एक व्यवस्था बनाने के लिए है, तो उसको वो तोड़ेगा नहीं। मजाक वो कभी कर सकता है, पर वो तोड़ने के विचार से नहीं बढ़ेगा जब वो समझ जाएगा। तो हमारा शिक्षा में ये काम है कि अनुकरण अनुसरण से जो अनुशासन की स्टेज है, उसको एक स्मूथली उसको आगे ले जाना। और शिक्षा का तो उद्देश्य है अनुशासन को ट्रांसेंड करना, अनुशासन से भी आगे जाना और स्व अनुशासन पे आ जाना। जब आदमी स्व अनुशासन पे आ जाता है तो अनुशासन की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि वो अब स्व अनुशासित है, बाहर से अनुशासन की आवश्यकता नहीं है, वो अंदर से आ रहा है। तो ये मानव का विकास है, और इस विकास के साथ आदमी फिर बड़े काम करने के लिए तैयार है। तो शिक्षा जो है हमें तैयार कर रही है कि हम अपनी छोटी सी भावपूर्ण दुनिया से निकल के बड़ी दुनिया में आ जाएं, उसमें भी आनंद से रहें, उसमें संबंधों को पहचानें, समाज को पहचानें। थैंक यू राजीव सर फॉर योर वैल्यूएबल इनपुट्स। अनुकरण अनुसरण और शुरुआती वर्षों में अगर हम प्यार, विश्वास, ममता का भाव बनाएंगे, और सब्सिक्वेंटली डिसिप्लिन की जो बात है वो लेटर स्टेज पर बच्चा फॉलो करता है। हो सकता है शुरुआत में इनकन्वीनियंस हो, लेकिन अंततः उसे समझ में आ जाएगा कि डिसिप्लिन इज द वे ऑफ लिविंग।
उसके अपने खुद के भले के लिए है। कमिंग टू इना जी, वर्तमान में जो भी हम स्कूल्स में एक सिस्टम्स देख रहे हैं कि होड़ की संस्कृति है ना, दूसरे को compete करने की प्रवृत्ति है रादर देन कंपेनियनशिप की, क्योंकि इस पूरी कायनात में अनेक अनेक जीव जंतु, जाति प्रजाति, पेड़ पौधे, पक्षी सब कुछ बना है। तो एक कोहेशन के साथ वो सब जीते हैं, सब रहते हैं। और हमारी जीवन की यात्रा, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अपने आप को बेहतर बनाना, ये अल्टीमेट हमारा ऑब्जेक्टिव लाइफ का होता है कि मैं कल से बेहतर आज कैसे बनूं, रादर देन मैं किसी और को compete करूं, किसी और को धकेलूं। और उसके चलते, इस थॉट प्रोसेस के चलते हुए ही ऑफ कोर्स इसमें पेरेंट्स की भी इसमें भागीदारी है, समाज की भी भागीदारी है कि हम किस चीज को बेहतर कहते हैं कि ग्रेड पॉइंट अगर अच्छे आ गए उसे बेहतर, सिर्फ उसे ही अच्छा कह रहे हैं, या फेलियर पर हम किसी के उसको छोटा या नीचा दिखाते हैं, या उसे उपहास का विषय बना लेते हैं, या उसे आइसोलेशन में डाल देते हैं कि सिर्फ वो एक पर्टिकुलर गतिविधि में बेहतर नहीं कर पाया, तो वो शाबाशी का हकदार नहीं रहा। ये शाबाशी देने की वजह जो है वो सिर्फ अच्छा स्कोर लेके आना है एंड रिजल्ट्स में। तो स्कूल सिस्टम में किस तरह के परिवर्तन छोटे और बड़े आवश्यक हैं, जिससे हम जो हमारा ऑब्जेक्टिव है पंचमुखी शिक्षा को, वो ऑब्टेन कर सकें। बिल्कुल सही बात कही आपने पुनीत जी। आजकल विद्यालय शिक्षा में और उनके माँ बाप में और उन बच्चों में बहुत होड़ है कि हम कैसे आगे बढ़े, कैसे हमारा स्कोर ज्यादा है। इसके 99% मार्क्स है, उसके 98 ही है, 98 में भी वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं पेरेंट्स। ये बहुत ही अजीब विडंबना है, छोटे से बच्चे से इतना एक्सपेक्ट करना, ये मुझे भी नहीं लगता कि सही है। इसमें मैं जानना चाहूंगी कि हमारी जो गुरुकुल प्रणाली थी पहले, वो बहुत सटीक थी। तो वैदिक युग के दौरान छात्रों को विभिन्न विषयों एवं सुसंस्कृत और अनुशासित जीवन जीने के लिए सिखाया जाता था। जब तक उनकी वो सभी क्षेत्रों में वो पारंगत नहीं हो जाते थे, उनको प्रमोट भी नहीं किया जाता था। होलिस्टिक एक पूरा उनका डेवलपमेंट एक गुरुकुल प्रणाली में होता था। हालांकि कहीं ना कहीं हमें अभी भी उसी तरह की प्रणाली को अपनाने की जरूरत है। कि गुरुकुल प्रणाली को आज बड़ा अजीब सा सोचते हैं कि आज के समय में गुरुकुल प्रणाली कैसे संभावित है, परंतु बहुत सारी बातें उसकी अच्छी थी। जैसे शिष्य गुरुकुल में रहते थे, आपसी भाईचारा, मानवता के प्रति प्रेम, एक दूसरे के साथ रहना, हेल्दी कंपटीशन भी होता था पर हेल्दी होता था, उसके साथ खेलना, उसको सहयोग करना। कई उदाहरण हमने देखे भी हैं कि जो कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए वो आगे बढ़े हैं। तो एक इस तरह का वातावरण हम विद्यालय में पढ़ाएं, सर्वांगीण विकास करें। एक बात आपने और बिल्कुल सही कही है कि एक अंधी दौड़ हो रही है। हमारा विद्यालय इस विद्यालय से ज्यादा अच्छा है, इसका रिजल्ट इतना अच्छा है, इसने टॉप किया है, इसके बच्चे IIT में सिलेक्ट हो गए हैं। ये होड़ ना होकर एक अच्छा इंसान बना के अगर हम विद्यालय से निकालें तो वो ज्यादा उचित होगा। दुनिया को सामना कैसे करना है, दुनिया में हम कैसे आगे बढ़े, ये चीज हमारी शिक्षा प्रणाली में होनी चाहिए। और जिसमें कि पंचमुखी शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। जैसे कि राजीव सर ने भी पहले कहा था कि हम शारीरिक शिक्षा और प्रैक्टिकल एजुकेशन और स्किल एजुकेशन, मॉरल एजुकेशन, इन सबको कहीं भूलते जा रहे हैं। सिर्फ एक बुद्धि कहना चाहिए, इंटेलेक्चुअल एजुकेशन पे ही हमारा पूरा एम्फेसिस रहता है। तो बच्चा अगर खेले कूदेगा नहीं, कुछ क्रिएटिव नहीं करेगा, तो वो कैसे आगे बढ़ेगा। एक सर्वांगीण विकास के लिए उसका खेल कूद से जुड़ना, इसीलिए विद्यालय के प्रति उसका आकर्षण होना, खेल कूद भी उसमें से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इन चीजों में अगर बच्चा आता है, शारीरिक मानसिक वैल्यू भी अगर वो सीखता है, क्रिएटिविटी कुछ सीखता है, क्रिएटिविटी भी, वो अच्छी ड्राइंग बनाता है, म्यूजिक सीखता है, डांस करता है, तो एक व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका एक विद्यालय निभा सकता है। हालांकि गुरुकुल प्रणाली वर्तमान युग में कई लोगों के लिए अजीब लग सकती है, जैसे मैंने कहा है, लेकिन फिर भी शिक्षा की भारतीयता को बनाए रखा जाना चाहिए। शिक्षा सिर्फ संतुलित जीवन की अवधारणा को समझने में बच्चों की सहायता करने के लिए है। शिक्षा जीवन के लिए होनी चाहिए, ना कि पहले रोजगार के लिए। पूरा जीवन पर्यंत शिक्षा को अपनाया जाना चाहिए। और हमारा एम्फेसिस आजकल क्या होता है कि अच्छा प्लेसमेंट मिल जाए, जैसे आपने कहा, और अच्छी नौकरी मिल जाए, बस हो गई इसकी एजुकेशन पूरी। पर उसके बाद वो कैसा व्यवहार कर रहा है, जहाँ वो जॉब कर रहा है, उसको जो कठिनाइयां उसको आती हैं, जो हार्डशिप आती है, उनको फेस कर पा रहा है कि नहीं, उसके लिए भी हमें उसको प्रिपेयर करना है। वो स्ट्रेस ले पा रहा है कि नहीं। तो आजकल की जो भागदौड़ वाली जिंदगी में बहुत ज्यादा तनाव मुक्त जीवन हम देखते हैं,
इतना ट्रैवल करना, इतने लंबी लंबी सिटिंग्स करना, आईटी सेक्टर्स में बहुत ज्यादा प्रेशर और स्ट्रेस देखने को मिलता है। तो हमारी शिक्षा उनको इस तरह से बनाई जानी चाहिए, पंचमुखी शिक्षा के माध्यम से हम उनको इस तरह से तैयार करें कि वो आगे वाले समय में भी, जॉब के बाद भी वो उस शिक्षा को आत्मसात करें और उसको अप्लाई करें अपने जीवन में। Well iterated about the necessity of पंचमुखी शिक्षा in school education sector. अब सवाल आता है इम्प्लीमेंटेशन का, तो ये एक जीवन का या मार्केट का एक सिद्धांत है, हम जो मांगते हैं वही मिलता है। तो असली परिवर्तन तो होता है जब मांग बदलती है, जब लोगों को स्वास्थ्य के प्रति चेतना जागी, तो उन्होंने खुद ब खुद हेल्दी फूड की नेसेसिटी को समझा, उसकी डिमांड करने लगे, नेचुरल प्रोडक्ट्स की डिमांड अपने आप होने लगी, फ्रेश फूड की डिमांड होने लगी। कि दवाइयाँ और डॉक्टर्स के पास जाने से बेहतर है कि स्वस्थ रहा जाए, जिम खुले। तो नीड जो है वो मार्केट फोर्सेस को डेवलप करती है, वो ड्राइव करती है। तो मुझे लगता है अगर पेरेंट्स इस बात को समझ लें कि स्कूल की बिल्डिंग कितनी खूबसूरत है, या वहाँ किस दर्जे के बच्चे पढ़ते हैं, या वहाँ की बसेस कैसी हैं, या वहाँ का स्टाफ कैसी गाड़ियों में आता है, इन बातों की बजाय वहाँ जाकर के महसूस करके देखें। किसी भी कैंपस में एक वाइब्रेशन होती है, किसी भी जगह पे हम जाते हैं, चाहे वो हिस्टोरिकल प्लेस हो, चाहे टेम्पल हो, या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो, और एनी अदर प्लेस, पब्लिक प्लेस, आपको एक वाइब्रेशन महसूस होती है कि यहाँ कैसी पॉजिटिविटी आ रही है। तो मुझे लगता है वो वाइब्रेशन तभी हो सकती है जब आनंद खुशी का माहौल होगा, और वो कॉम्पिटिटिव की जगह कंपेनियनशिप का जब बात होगी, तो वो, और वही मुझे लगता है कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए सूत्र वहीं से शुरू होगा। अन्यथा जब तक आप मांगते रहेंगे कि मुझे जंक फूड चाहिए, फिर आप उम्मीद करें कि फलाहार की दुकान खुले और फ्रूट्स की दुकानें खुले, तो फिर ये संभव नहीं हो पाएगा। तो रियल चेंज विल स्टार्ट फ्रॉम पेरेंट्स और फ्रॉम द सोसाइटी इटसेल्फ। सर, हायर एजुकेशन जो हमारा टर्शरी स्टेज है, और आपने एक पूरा जीवन हायर एजुकेशन को समर्पित किया है, और बहुत सुदृढ़ नींव रखी अनेक चीज़ों की, जिसमें से आपका स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम है, ह्यूमन वैल्यूज सिस्टम को लेकर के आपने जो फॉर्मल ट्रेनिंग शुरू की, और पूरे देश भर में कोने कोने तक वो बात पिछले महज 5-6 साल में वो पहुंच गई, और अच्छी इफेक्टिवनेस भी है उसकी। नेसेसिटी एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट पंचमुखी शिक्षा इन हायर एजुकेशन सेक्टर। इससे पहले मैं थोड़ा सा, जो आपने बहुत सही बात कही कि मार्केट में डिमांड किस चीज की है, मांग किस चीज की है, तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जब IIIT हैदराबाद में पहले हमने ह्यूमन वैल्यूज का इम्प्लीमेंटेशन किया, तो एक आश्चर्य की चीज हुई, ये हमको पता नहीं था, लेकिन कंपनियां हमारे इंस्टीट्यूट में आने लगी स्टूडेंट्स को हायर करने के लिए। और हमने तो सोचा कि भाई हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर साइंस की अच्छी तैयारी कर रहे हैं, तो मात्र उसके कारण है। जब उनसे बात की तो पता चला कि नहीं साहब, आपके स्टूडेंट्स थोड़े अलग हैं। मैंने कहा किस रूप से अलग हैं? मैंने सोचा वो कहेंगे कंप्यूटर साइंस में बढ़िया हैं, और मैं उसका श्रेय तो लेना ही चाह रहा था। उन्होंने कहा नहीं, वो अच्छे तो हैं, लेकिन वो साथ में मिलके काम करते हैं। जबकि आज हम जिसको भी हायर कर रहे हैं, वो ये दिखाने में लगा है कि मैं कितना बढ़िया प्रोग्रामिंग कर सकता हूं। भाई, कंपनी को काम चाहिए, और वो काम मिलके होता है, अकेला व्यक्ति नहीं करता है। और जब मिलके काम होता है तो काम बढ़िया होता है, वो डिपेंडेबल होता है। इसके साथ में इनोवेशन वाली चीजें भी हैं, पर ये जो है ग्राउंड फैक्ट है। और इसके कारण हमें पता भी नहीं चला कि हाईएस्ट सैलरीज ऑफ द कंट्री हमारे बच्चों को मिलने लगी। अब उसका दूसरा प्रभाव हुआ कि और बच्चे वैसे आने लगे जिनके पेरेंट्स कहते थे अरे हाईएस्ट सैलरी लो, जबकि हमने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को किस बात पे स्ट्रेस दिया कि भाई कोऑपरेशन, कंपटीशन नहीं, कोऑपरेशन। और कोऑपरेशन के लिए माहौल तैयार किया इंस्टीट्यूट में। इसमें एक चीज और भी हुई कि ये जब हमने ह्यूमन वैल्यूज को इम्प्लीमेंट किया, उसके मैंने सोचा था इसका असर तो 5 या 10 साल बाद आएगा। 2-1 वर्ष बाद ही
एक चीज होने लगी, जो विजिटर्स आते थे वो कहते थे नहीं आपकी इंस्टीट्यूट थोड़ी अलग है। तो मैं पूछता था किस रूप से अलग है, तो लोग बता नहीं पाते थे, बोले नहीं सब कुछ अलग है। जो आपने वाइब्रेशंस की बात कही पुनीत जी, तो मैंने सोचा ये कौन से वाइब्रेशंस हैं, ये क्या चीज है जिसके लिए कह रहे हैं ये अलग है। और इसी तरह सवाल पूछते हुए किसी एक ने उत्तर दिया, यहां पर एग्रेशन नहीं है। आज मॉडर्न लाइफ में इतना अपने आप को दिखाने की चेष्टा है, अपने आगे बढ़ के दूसरों के कंधों पे चढ़ के ये दिखाना है कि मैं सबसे आगे हूं। इससे जो एक एग्रेशन निकल के आता है, आपकी संस्था में उसका अभाव है। एग्रेशन नहीं है। बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं, जो भी बड़े सामान्य रूप से नेचुरल वे में सहज रूप से बात करते हैं, वो ये दिखाने में नहीं लगे हैं कि मैं कितना आगे हूं। तो जब आदमी दूसरे से सहज रूप से बात करता है तो वो एक चीज ही अलग होती है। हम आनंद की बात कर रहे हैं, सुख की बात कर रहे हैं, तो ये भी उसका एक अंग है कि हम जिससे भी सहज रूप से बात करते हैं उसमें हम भी प्रसन्न हैं, हम भी आनंद को प्राप्त करते हैं, दूसरा भी करता है। और इस केस में जो वाइब्रेशंस हैं वो वैसी वाइब्रेशन जो है पूरे सब जगह फैलती हैं और इसमें और अच्छी चीजों के लिए स्थान आगे बनता है। तो ये एक स्वाभाविक चीज मुझे लगी जो अपने आप हुई, जो हमने कोई डिजाइन नहीं की थी, ये अपने आप हुई। तो पेरेंट्स ये कहते हैं कि भाई हमारे बच्चा कंपटीशन में आगे आए, लेकिन जब वो जॉब लेने जाता है या जॉब में मिल भी गया, इसके आगे तरक्की जो उसकी होती है वो इसके आधार पे होती है कि उसका व्यवहार कैसा है। वो एग्रेसिव के बदले वो कोऑपरेटिव है या नहीं है, इन चीजों पे होता है। यहां तक हुआ कि एक स्टूडेंट ने कंपनी को ज्वाइन किया था, उसके बॉस का बॉस काफी एक दिन वो उनको लेके आया, बोला नहीं मैं देखना चाहता हूँ ये इंस्टीट्यूट कैसा है जिसने तुम्हारे जैसे बच्चे को बनाया है। मैं उसके लिए श्रेय नहीं लेना चाहता, जरूर उसके संस्कार रहे, उसको भावपूर्ण वातावरण जरूर मिला होगा बचपन में और हमने उसको और गढ़ने में शायद सहायता की। और वो आके देखा, बोले अरे ये तो अलग ही जगह है। तो एक सामान्य वातावरण, एक सहज वातावरण, दोस्ती मैत्री का, सहयोग का वातावरण, इस वातावरण में जब बच्चा बड़ा होता है तो वो स्कूल एजुकेशन में भी और हायर एजुकेशन में भी। तो कई लोग मुझसे कहते थे अरे हायर एजुकेशन में तो बहुत देरी हो गई, ये ह्यूमन वैल्यूज तो ऐसा है वो स्कूल के लेवल पे होनी चाहिए। तो मैं आधा मजाक में लेकिन मैं सीरियसली उनसे यही बोलता था कि नहीं नहीं, हम तो उससे भी और जल्दी कर रहे हैं। बोले ये कैसे? कि हम ये बच्चे जो पेरेंट्स बनेंगे, क्या बात, बहुत सुंदर। तब अपने बच्चों को अपने घर से वो शिक्षा देंगे, वैसा वातावरण देंगे, ये हमारी आशा है, शुभेच्छा है। तो ऐसे वातावरण में वो तैयारी होगी। तो अब तो हर लेवल पर, हर स्तर पर इसको करने की आवश्यकता है कि हम पहचानें कि हम कौन हैं, मानव क्या है। मानव की स्टडी अभी तक मैं कहूँगा हुई नहीं है। जो साइकोलॉजिकल स्टडी है वो अधूरी है। उसके साथ स्पिरिचुअलिटी का एलिमेंट लाते हैं तो एक्चुअली नेचुरल मानव वैसा है। ये हम नहीं कहेंगे कि ऐसा करो, ऐसा नेचुरल है, उसमें कोऑपरेशन है। कंपटीशन जब करता है तो उसके अंदर भी एक तनाव पैदा होता है और वो शरीर में दिख जाता है। अब तो ये सब मुझे कहने की भी आवश्यकता नहीं है। उसमें ब्लड प्रेशर आ जाता है, उसमें हाइपरटेंशन आती है, इसके साथ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। तो हमारा जो डिजाइन है, हमारा जो मन का, हमारे सोचने का और शरीर से जो उसका संबंध है, उस पूरे डिजाइन में कोऑपरेशन है, उसके पूरे डिजाइन में प्रेम है। और उसके आधार पे अगर हम आगे बढ़ेंगे तो समाज को ये समझ लेना चाहिए, खासकर पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि आप अपने बच्चे को जिस चीज के लिए तैयार कर रहे हो, कंपटीशन करके आप कहीं ना कहीं उसका भी बुरा कर रहे हो। क्योंकि वो आ भी गया तो वो डिप्रेशन में जाता है, दुख में जीता है। फिर नौकरी मिलती है तो प्रमोशन नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा जो है कोऑपरेट नहीं करता है, हर चीज में अपना दिखाने की कोशिश करता है। तो ये रियलिटी आज भी है। लेकिन चूंकि बड़े स्तर के कुछ कंपटीशन के आधार पर व्यवस्थाएं बन गई हैं, अब वो समय आ गया है कि हम उनको क्वेश्चन करें। हम किस प्रकार का समाज बनाएं
जिसमें कंपटीशन नहीं, कोऑपरेशन ही मूल मंत्र हो जाए। अभी कंपनी के अंदर कोऑपरेशन है, दो कंपनियों के बीच कंपटीशन है ना? तो इसमें आधा है, पूरा नहीं हुआ है, पर एक इसको पूरा करने की जरूरत है कि जब हम समाज में हम काम कर रहे हैं, चाहे हम व्यक्ति हो, चाहे कंपनी हो, चाहे कुछ भी हो, तो हम एक समाज के भले को रूप आगे रखते हैं। प्रॉफिट मोटिव नंबर 2 और नंबर 5 आ जाता है, बाकी चीजें आगे बढ़ जाती हैं। उसमें धरती को बचाना है, ये भी आगे आ जाता है। मानव मानव के संबंध को आगे बढ़ाना है, ये भी आगे हो जाता है। तो अगर हम ये काम ठीक से कर पाए तो ये समाज जो है ये खुद पहचानेगा कि क्या है, रियलिटी क्या है। और हम आर्टिफिशियल कितना भी बना लें, भाई हम तो हैं तो मानव ही ना। मानव में जो नेचुरल है, जो हमारे लिए स्वाभाविक है, प्राकृतिक है, वही चलेगा। और दूसरी चीज कुछ और लंबे समय तक चल नहीं पाएगी, क्योंकि मानव खुद बीमार हो जाएगा। अभी धरती बीमार हुई है, मानव भी बीमार होना शुरू हो गया है। जो हम देखें, जो देश सबसे आगे दिखाई देते हैं इकोनॉमिक्स में, सबसे ज्यादा डिप्रेशन भी वहीं पर है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो व्यवस्थाएं बनाई हैं वो मानव के अनुरूप नहीं है। तो इसमें अब आवश्यकता हो गई है कि हम शिक्षा में ये काम करें, और शिक्षा से जो निकल के चीज व्यक्ति आएंगे, आगे बढ़ेंगे, वो एक नए समाज की रचना करेंगे। हमारी युवा पीढ़ी एक नए समाज की रचना करेगी। सर, मैं यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, उस पर चाहूँगा आप कुछ प्रकाश डालें। चूंकि पर्सनैलिटी में या काम में या आगे बढ़ने में ये तीनों शब्दों की आवश्यकता पड़ती है: डिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंट। तो ये अक्सर लोग क्या है कि इंडिपेंडेंट होने को ही अल्टीमेट मान लेते हैं, दैट इज द ओनली थिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड टू मूव अहेड, एंड पीपल फॉरगेट दैट डिपेंडेंस इज आल्सो इक्वली necessity. It is a necessity of every and any human being, any creature rather. And similarly interdependence, कि हम पेड़ पर निर्भर हैं, तो हम अगर पेड़ को पानी दे रहे हैं तो वो पेड़ के लिए भला नहीं कर रहे, वो अल्टीमेटली हमारी जो डिपेंडेंस है पेड़ के ऊपर, डिपेंडेंसी है, उसी को ही एड्रेस कर रहे हैं। तो इन तीनों पे थोड़ा सा और अगर आप संवाद कर सकें। आपने बहुत सुंदर बात कही है। जो आपने मुद्दा उठाया है बिल्कुल मेरे हिसाब से केंद्रीय मुद्दा है। इसको अगर हिंदी में अगर हम देखें, स्वतंत्रता, ठीक है, अंग्रेजी में डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस आया है ना? जी जी। तो लेकिन अगर देखें तो स्वतंत्र, स्व मतलब सेल्फ, तंत्र मीन्स ऑर्गेनाइजेशन। तो जो मेरा नेचुरल सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उसको प्राप्त करूं, ठीक है। तो जहां मेरा नेचुरल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें प्रेम है, उसमें कोऑपरेशन है। आदमी अकेला रहने के लिए बना ही नहीं है, आदमी तो साथ रहने के लिए बना हुआ है, ठीक है। तो स्वतंत्र, जब मेरा खुद का तंत्र मैं अपने उसमें जाता हूं, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन समाप्त हो जाता है, क्योंकि मैं खुद सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड हूं। और सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड का अर्थ क्या है? दूसरे के साथ मिलके इंटरडिपेंडेंस, और कुछ मामलों में डिपेंडेंस भी। जब बच्चा शिशु पैदा होता है तो पूरी तरह से डिपेंडेंट है माँ के ऊपर। तो वो डिपेंडेंस और इंटरडिपेंडेंस साथ में चलती है। लेकिन आवश्यकता क्या है कि स्वतंत्रित हो जाए। इंडिपेंडेंट मतलब अंग्रेजी में वो अर्थ नहीं आता है, पर अगर हम भारतीय भाषाओं में देखें तो ये बहुत गूढ़ बात है, जो कि शब्दों में लिख दी गई है। शब्द चीख चीख के कह रहा है कि मैं स्वतंत्र हूं, मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूं। खुद एक सिस्टम के तहत है, बस वो खुद का बनाया हुआ है, उसको हम सुन नहीं पाते हैं शब्दों को। तो स्वतंत्रित जब है, और फिर समझना होगा कि स्व का क्या अर्थ है, स्वतंत्र का क्या अर्थ है, तो उसमें वो सारा डिपेंडेंस या सारा कनेक्टिविटी निकल के आती है कि मैं अपने परिवार से जुड़ा हूं, मैं अपने समाज से जुड़ा हूं, मैं प्रकृति से जुड़ा हूं। और समाज कौन सा? पूरी धरती का समाज, पूरी धरती की मानवता। तो ये स्वतंत्रता से सह अस्तित्व, वहां तक बात पहुंचती है। और वो किस भाव के साथ? भाव उसमें एक ही है, भाव है प्रेम का। तो उस ये नेचुरल डिजाइन है। ये मैं नहीं कह रहा हूं किसी से प्रेम करना चाहिए, धरती से प्रेम करना चाहिए, ये आप करोगे ही, ये नेचुरल है। आप अपने दूसरे मानव से, आपके साथ में वो भाव आएगा ही, सहायता का भाव आएगा ही।
तो ये इसको अगर हम पहचानते हैं तो हम स्वतंत्रित भी हैं, हम इंडिपेंडेंट भी हैं और साथ में हम बहुत मजे में एक दूसरे पर निर्भर भी हैं। और यही हमारी इंडिपेंडेंस है, यही हमारी स्वतंत्रता है, सेल्फ ऑर्गेनाइजनेस यही है। थैंक यू सर। कठिन बात को सरलता से कह दें, वही मुझे लगता है सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है। और आपने इतनी सरलता से, सहजता से बात को समझाया है। आई थिंक आज के प्रोग्राम में जो हमें सूत्र ढूंढ रहे थे ना, वो सूत्र शायद यही है। अगर इसको जिसके समझ में आ गया तो फिर आगे की बात खुद ब खुद होने लग जाएगी। नाउ कमिंग टू Ina ji, your take on what can be a model curriculum or a model system in a university education system for पंचमुखी शिक्षा की क्या-क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि हायर एजुकेशन खास तौर से प्रोफेशनल एजुकेशन में हम ये मानते हैं कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की हम एक्सपर्टीज हासिल करते हैं, जिससे उसे हम आगे डिलीवरी करें, चाहे लॉ की शिक्षा हो, चाहे मेडिसिन की हो या तकनीकी की शिक्षा हो। तो आप एक सर्टेन सेट ऑफ स्किल्स एक्वायर करते हैं टू डिलीवर एंड टू अर्न और टू एड्रेस सर्टेन प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी। और उसमें होलिस्टिक एजुकेशन को या दूसरे एलिमेंट्स को किस तरह से हम फिट इन कर सकते हैं बिना उस चीज को समझौता किए। मतलब ऐसा नहीं हो कि उन चीजों को सीखने में आपकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस में कमी आ जाए, बिना उसको अफेक्ट किए, किस तरह से हम उसको समावेश कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है अपने लिए। जनरली जो हमारी हायर एजुकेशन है, द जनरल टेंड टू कंसिडर टीचिंग, रिसर्च एंड आउटरीच as a 3 pillar of higher education, but Banastali gives equal emphasis to the 4th pillar, that is ignore one, and that is education for life, education for character building, we can say value education. हमारी जो यूनिवर्सिटी है उसका करिकुलम हमने ऐसा डिजाइन किया हुआ है जिसमें कि बहुत सारे हमने फाउंडेशन कोर्सेज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि वैल्यूज को बढ़ाते हैं, जैसे इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, पेरेंटहुड एंड फैमिली रिलेशंस, जो कि अभी हमने चर्चा की है कि पेरेंटहुड को कैसे हम बच्चों को सिखा सकते हैं आगे जाके, जो कि उनके व्यवहार में आना है। इसके अलावा अच्छे संस्कार और अच्छे लिटरेचर से भी बच्चों को परिचित कराना जरूरी है। जैसे आपने कहा, चाहे वो लॉ के स्टूडेंट हो, चाहे इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, चाहे मैनेजमेंट के हों, तो इसमें सिलेक्टेड राइटिंग्स ऑफ ग्रेट ऑथर्स करके एक हमारा फाउंडेशन कोर्स चलता है, जिसमें कि रामायण भी पढ़ते हैं, वो गीता भी पढ़ते हैं, और लाइफ ऑफ गांधी बाय लुईस फिशर, वो भी एक किताब उसमें चलती है। आर्ट ऑफ लिविंग बाय दिवाकर शास्त्री जी, वो भी उसमें चलती है, जो कि गीता का नीति शास्त्र बताते हैं कि गीता को कैसे हम अपनी लाइफ में आत्मसात कर सकते हैं, कैसे हम डे टू डे लाइफ में उसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बाइबल भी पढ़ते हैं, वो कुरान भी पढ़ते हैं, अलग अलग रिलीजन्स के स्टूडेंट्स हमारे यहाँ हैं, उनकी जो अच्छी बातें हैं वो उसमें जाने, वो ये हमारे फाउंडेशन कोर्सेज हैं। इसके अलावा जो हमारे पंचमुखी शिक्षा के जो कोर्सेज हैं, उसमें फिजिकल एजुकेशन में वो तरह तरह के फिजिकल एक्टिविटीज सीखते हैं। उसमें एरोबिक्स है, योगा है, मार्शल आर्ट्स है, हॉर्स राइडिंग है, फ्लाइंग है, स्विमिंग है, और जो कि उनको एक अनुशासित बनाती है, आत्मनिर्भर बनाती है और निडर बनाती है, और शारीरिक रूप से स्वस्थ तो डेफिनेटली बनाती ही है, जो कि आगे की लाइफ में उनको काम आएगा। इसके अलावा जो हमारा एस्थेटिक कंपोनेंट है या सौंदर्य परक शिक्षा है, उसमें वो नृत्य भी सीखते हैं, गीत भी सीखते हैं, भारतीय संस्कृति को जानते हैं, हमारी लोक संस्कृति के जो लुप्त प्राय वाद्य हैं उनको भी वो बजाना सीखते हैं, क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी वो सीखते हैं, ड्राइंग एंड पेंटिंग भी सीखते हैं, फ्रेस्को आर्ट जो कि भित्ति चित्र हमारी परंपरा रही है उसको भी सीखते हैं, क्राफ्ट जो हमारे इंडियन ट्रेडिशन है, जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं हमारे, उनको भी सीखते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें सीखते हैं जो कि उनको रोजगार उन्मुख भी बनाती है। और एस्थेटिक एजुकेशन में मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि हमारे स्टूडेंट, एक कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट थी, MCA करके वो गई थी, और साथ साथ में उसने एस्थेटिक एजुकेशन में डांस में निष्णात किया था, कथक डांस में। अब अमेरिका में उसका जॉब लग गया था, वहाँ पे वो चली भी गई थी, पर वहाँ पे उसने अपनी एक डांस एकेडमी शुरू की और उससे उसको बहुत अच्छा प्लेजर भी मिलता है। वो दोनों चीजें साथ साथ चला रही है, बहुत अच्छा वो कर रही है उस क्षेत्र में। तो कहीं ना कहीं जो एजुकेशन हम लेते हैं, 5-fold एजुकेशन, ये आपको एक कहना चाहिए कि आपको प्लेजर भी देती है, आपका एक कहना चाहिए कि आपका जो पैशन है उसको भी आप जी पाते हैं। एक जो हैप्पीनेस वाली जो बात कहते हैं हम, वो भी इनसे महसूस होती है।
अभी हाल ही में हमारे यहाँ एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन हुआ है, जिसमें कि ओलंपिक साइज का पूरा एक टेनिस कोर्ट बना है और बैडमिंटन कोर्ट बना है। तो देखने में आया, जब उद्घाटन में गए तो बड़े बड़े लोग, सब प्रोफेसर्स भी, उसको देखते ही सबकी इच्छा हुई कि हम खेलें। तो उस खेलने की भावना जो बच्चों में पैदा होती है, वो एक रिक्रिएशन, एक मेडिटेशन है अपने आप में, जो कि आपको एक अच्छा प्लेजर देता है, जो कि डे टू डे लाइफ से, स्ट्रेस से आपको दूर करता है। तो जो हमारी इसके अलावा प्रैक्टिकल एजुकेशन जो हमारी है, उसमें वो कढ़ाई सीखते हैं, खाना बनाना सीखते हैं। आप देखिए कि बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिकल चीजें सीखते हैं जो कि उनको रोजगारोन्मुख बनाती हैं। अब देखिए खाना बनाना आजकल कितना एसेंशियल हो गया है। मेरा बेटा भी अभी यूके में पढ़ा है और वहां तो खुद कुक करना पड़ता है। अगर वो एजुकेशन हम अपने बच्चों को भी देंगे तो कभी भी वो मुश्किल नहीं आएगी। बाहर जाके हम सभी फेस करते हैं पेरेंट्स की, हमारे बच्चे को खाना अच्छा मिल जाए। तो वो चीजें भी लाइफ का एक पार्ट है जो कि उनको एक सिखाता है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, मॉरल एजुकेशन। तो मॉरल एजुकेशन को हम क्लासरूम में नहीं पढ़ा सकते, उसको हमें अपने वातावरण को ऐसा बनाना पड़ता है कि वो मॉरल एजुकेशन उनको डे टू डे लाइफ में वो आत्मसात करें। जैसे हम परिवार की बात करते हैं कि परिवार में हमारा एक वातावरण ऐसा होना चाहिए जिसमें हम संस्कार बच्चे को देते हैं, ऐसा ही वातावरण हमें विद्यालय में भी क्रिएट करना होगा, जो कि संस्कार, उसके नेक्स्ट लेवल के संस्कार जो है वो बच्चे में समाहित करा पाए। जैसे हम विद्यापीठ में देखिए, सभी रिलीजियन प्रेयर हमारे यहाँ होती है, सभी धर्मों की प्रार्थना होती है, सभी कल्चरल और जो हमारे जो राष्ट्रीय त्योहार हैं वो वहाँ पे सेलिब्रेट होते हैं। तो उनकी सेंटिटी क्या है, कैसे वो सेलिब्रेट होते हैं, उसके पीछे क्या भावना है, अपनी संस्कृति से जोड़ने का कार्य इसके माध्यम से करते हैं। वो नेचुरल वे में वो नैतिक शिक्षा प्राप्त करते हैं, कैसे बड़ों से व्यवहार करना है, कैसे मिलके रहना है। इसके अलावा देखिए, वनस्थली में लगभग सभी स्टेट्स के, ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स हैं। वो अलग अलग परिवेश से आ रही हैं, अलग अलग भाषाओं को बोलने वाली हैं, नॉर्थ ईस्ट से भी स्टूडेंट्स हैं। वो कैसे समाहित होकर एक साथ एक हॉस्टल में रहती, 50 हॉस्टल हमारे यहाँ हैं, वो कैसे सब मिलकर रहती हैं, कैसे भाईचारा, आपसी भाईचारा उनमें डेवलप होता है। ये चीजें कहीं ना कहीं मिसिंग है आज की एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में। ये सब चीजें आएंगी तो जो होड़ आपने बताई है कि मैं इससे आगे निकल जाऊं, वो उससे आगे निकल जाए, वो चीजें एक कहना चाहिए कि कोऑपरेटिव फीलिंग उनमें आएगी, एक सहयोग की भावना उनमें विकसित होगी। इसी का परिणाम है देखिए 5-4 एजुकेशन का, कि हमारे बहुत सारी जो स्टूडेंट्स हैं अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रही हैं, चाहे वो लीडरशिप में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो आर्मी में हो, चाहे पुलिस में हो, और चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे स्टैटिस्टिकल उसमें हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब में हो, बहुत अच्छा वो कर रही हैं। क्योंकि जैसा कि सर ने भी कहा है, राजीव सर ने, कि आपके जो कंपनीज आती है प्लेसमेंट के लिए, और उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया कि आपके यहाँ कुछ अलग वाइब्रेशंस है। शायद मैं भी इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि हमारे यहाँ भी जो कंपनीज आती है वो भी यही कहती हैं कि आपके यहाँ भी कुछ अलग वाइब्रेशंस है। कंपनीज ही नहीं बल्कि पेरेंट्स भी जो आते हैं वो भी कहते हैं अलग महसूस होता है यहाँ के। और शायद स्पिरिचुअल और जो एक फैमिली फीलिंग जो यहाँ पर है, पारिवारिक भावना जो यहाँ पर है, वो शायद उनको आकर्षित करती है। और उनका भी ये मानना है कि जो हमारे विद्यार्थी हैं वो कुछ हटके हैं, वो कुछ अच्छा करते हैं। तो शायद ये कहीं ना कहीं पंचमुखी शिक्षा से जो उनमें एक ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट उनका होता है, वो कहीं ना कहीं उनके वर्क कल्चर पे भी रिफ्लेक्ट होता है। वो एक अनुशासन, एक सहयोगी भावना, एक कहना चाहिए कि एक संस्कार की भावना, जो संस्कार उनमें विकसित हुए हैं, वो कहीं ना कहीं उनके वर्क कल्चर में भी दिखाई देते हैं। तो इस तरह से अगर हम अपने करिकुलम का डेवलपमेंट करेंगे हायर एजुकेशन में, तो निसंदेह हम 5-4 एजुकेशन भी, आपकी इंटेलेक्चुअल एजुकेशन भी, और संपूर्ण विकास एक व्यक्तित्व का एक बालक के रूप में हम कर सकते हैं। मैं खुद भी ये कहना चाहूंगा कि वनस्थली में जब आया तो अलग ही वाइब्रेशंस है, क्या जगह है और किन चीजों को लेके आप आगे बढ़ रहे हैं। उस समय आदित्य जी थे और आप उसको आगे ले जा रही हैं। नहीं, बिल्कुल आप धन्य हैं, आप इस परंपरा को लेके आगे ले जा रहे हैं और वो आज के युग के लिए उसको तैयार कर रहे हैं। ये बहुत बढ़िया चीज है कि हम पारंपरिक भी हैं लेकिन हम कंटेम्प्रेरी भी हैं, दोनों चीजें साथ में हैं। तो नहीं, बिल्कुल आपका तो बहुत ही वंदनीय इंस्टीट्यूशन है और मेरी इच्छा होती है कि आपके इंस्टीट्यूशन को देख के बाकी यूनिवर्सिटीज और सब में वही चीजें आनी चाहिए। धन्यवाद। कमिंग टू राजीव सर, मैं माफी चाहूंगा अगर मेरे एंड से थोड़ा नॉइज है क्योंकि आसपास कुछ
अल्टीमेटली टीचर और पेरेंट्स वही दो व्यक्ति हैं जो डिलीवरी करते हैं, जिनका विद्यार्थियों से इंटरेक्शन होता है। उनको किस तरह से ओरिएंट किया जाए पंचमुखी शिक्षा के लिए। टीचर जब क्लासरूम में आता है तो महज वो सब्जेक्ट को नहीं पढ़ाते, टीचर का व्यक्तित्व कहीं ना कहीं बच्चों को छूता है, चाहे उसका ड्रेसिंग हो, बोलने की शैली हो, जीवन जीने के तरीके हो, उसकी हॉबीज हो। बच्चे कहीं ना कहीं कनेक्ट और कोरिलेट जरूर करते हैं। पेरेंट्स के बाद जाहिर सी बात है वो टीचर से ही सबसे ज्यादा संपर्क में रहते हैं। उनकी ट्रेनिंग किस तरह से की जा सकती है, उनका क्या खास रोल होना चाहिए पंचमुखी शिक्षा के लिए? नहीं, आपने सवाल अच्छा पूछा है और इसका कोई आसान उत्तर नहीं है। हम अपने समाज का वातावरण कुछ इस प्रकार से हमारा बन गया है, शायद मैं कहूँ इसमें अब मैकॉले की शिक्षा और ब्रिटिश शिक्षा जब भारत में आई तो भारत की जो शिक्षा पद्धति थी वो धीरे धीरे उसको खत्म कर दिया गया। तो जो हम गुरुकुल की बात कर रहे हैं और यहाँ पर मुझे आता है विचार कि इसमें धर्मपाल जी ने एक किताब लिखी है द ब्यूटीफुल ट्री, और वो उसमें भारत में अंग्रेजों से पहले का भारत या अंग्रेज जब आए हैं उस समय भारत की शिक्षा कैसी थी, तो इसके ऊपर ब्रिटिश आर्काइव से उन्होंने वो सारी चीजें निकाली है। तो 1810 1830 अलग अलग जगहों पर भारत में सर्वे कराए थे ब्रिटिश ने, और आश्चर्य की बात ये थी कि हर गांव में स्कूल था और स्कूल में पढ़ने वाले खाली ब्राह्मण नहीं थे, सभी जाति के लोग थे। उसमें 30% बालिकाएं थी जितना मुझे याद है। तो भारत की जो शिक्षा थी एक तरह से वो इंक्लूसिव शिक्षा थी, कम से उसमें रोक नहीं थी, सभी जाति के लोग पढ़ते थे। और वो शिक्षा, उसमें ये पंचमुखी शिक्षा का अगर मैं कहूँ तो इसमें वो सारी बातें शामिल थी। लाइवलीहुड वाली चीज बच्चा घर पे सीख जाता था, तो उसको अलग से सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब देखिए उल्टा हो गया, बच्चा यहाँ आके नैतिकता, व्यवहार, समाज में कैसे जीना है, कैसे व्यवहार करना है, ये सब सीखता था। अभी क्या हो गया, ये सब चीज हमने निकाल दी और खाली आजीविका, स्किल वाली चीज ले आए। तो अब ये बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब इसको कैसे ठीक किया जाए, तो इसको ठीक करने के लिए मुझे लगता है कि जो वर्ग हैं, जो अब आजीविका के चक्कर से के दबाव में नहीं है, मैं ये कहूँ, एक बड़ा वर्ग है जिसने मान लिया है कि हम दबाव में हैं, इसलिए वो पैसे कमाने की होड़ में है और अपने बच्चों को भी झोंक रहे हैं, है ना। वो बच्चों को रैट रेस में डाल रहे हैं, ये नहीं समझ पा रहे कि रैट रेस में जो जीतेगा वो भी चूहा है और जो हारेगा वो भी चूहा है, चूहा ही बन के निकलेगा। तो आप अपने बच्चे को चूहे से ज्यादा सोच ही नहीं पा रहे। तो इसके बाहर समाज कैसे निकले, ये एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन शिक्षा में अगर हम अध्यापक इस बात से खुद बाहर आ जाएं, हम खुद रैट रेस में, तो ऐसा तो नहीं कि हम खुद रैट रेस में फंस गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने व्यवहार से बच्चों को इसी ओर आगे बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसमें अध्यापकों की विशेष भूमिका होगी, और अध्यापकों के साथ जो पेरेंट्स, माता पिता इसमें आगे आएंगे, वो भी फिर इसके आगे हो पाएंगे। तो मुझे लगता है ये हमारे पास चाबी है, ये तरीका है जिससे हम इस अभी जहाँ फंस गए हैं उससे बाहर निकल आएंगे। और पहले वो वर्ग बाहर निकलेंगे जो थोड़े समझदार हो गए हैं, जिनको आजीविका के इतने दबाव में नहीं है। तो जैसे ये चीज होगी, पर मुझे बहुत आशा है कि आने वाले 20 वर्षों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, और वो खाली भारत में ही नहीं आएगा, भारत से मुझे आशा है पूरे देश, विश्व में जाएगा। तो शिक्षा संस्थाओं की विशेष भूमिका इसमें रहेगी। हिना जी, आपका इस विषय में क्या कहना है? रोल ऑफ अ टीचर एंड पेरेंट टू इम्प्लीमेंट और फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पंचमुखी शिक्षा। देखिए, मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ सर से, और एक बात मैं कहना चाहूंगी, टू इंस्पायर द यंगस्टर्स, टू इंस्पायर द स्टूडेंट्स,
to lead them to Panchmukhi Shiksha, teacher, parents and society should play a twin role to mold themselves and then mold others. यानी पहले हमें खुद को अपने को पंचमुखी शिक्षा के लिए तैयार करना पड़ेगा, फिर हम अपने विद्यार्थियों को या अपने बच्चों को हम उसके लिए प्रेरित कर सकते हैं। देखने में आता है कि मैं खुद भी ये महसूस करती हूँ कि पेरेंट्स कहते हैं क्यों खेल कूद में टाइम बर्बाद कर रही हो, क्यों सांस्कृतिक कार्यक्रम में टाइम बर्बाद कर, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। 24 घंटे बच्चा नहीं पढ़ सकता, उसको भी रिक्रिएशन की जरूरत होती है, थोड़ी सी मनोरंजन की भी जरूरत होती है, और वो मनोरंजन के साथ साथ उसका एक दूसरा डेवलपमेंट भी उसका साथ साथ हो रहा है। वो पेरेंट्स और हमारी सोसाइटी या हमारे टीचर्स नहीं समझते हैं। बहुत से टीचर्स भी कहते हैं कि पढ़ाई में तुम्हारी अटेंडेंस शॉर्ट हो रही है, तुम पढ़ाई के अलावा उसमें वो कर रही हो। पर ये देखने में आया है कि जो विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ और गतिविधियां भी करते हैं, टूर्नामेंट्स में जाते हैं, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, वो पढ़ाई में भी उतने ही अच्छे होते हैं, उनकी कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ती है। अब ये रिसर्चेस भी हुई हैं, सारे इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि म्यूजिक के साथ अगर जुड़ा हुआ है बच्चा, अगर वो अच्छे से म्यूजिक सीखता है शुरू से, तो मैथमेटिकल पावर उसकी बढ़ती है, कैलकुलेशन बढ़ती है उसकी, एक ब्रेन उसका डेवलपमेंट होता है। यानी म्यूजिक एक ऐसा सब्जेक्ट है, या कहना चाहिए कि जिसमें तीनों डोमेन्स एजुकेशन के हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन, तीनों ही डेवलप होते हैं। तो यानी इसका संज्ञानात्मक विकास भी होता है, इसकी मोटर स्किल्स भी डेवलप होती हैं, और उसका कहना चाहिए कि एक एप्लीकेशन पार्ट भी उसमें होता है। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी शॉर्ट में कि पहले हमारा टीचर्स, हमारी सोसाइटी और हमारा जो समाज है वो इस चीज को समझे, और फिर हमारे बच्चों को प्रेरित करे कि वो इस चीज के लिए आगे बढ़े। जी, थैंक यू। और इससे पहले कि हम हमारे दर्शकों के कुछ चुनिंदा सवाल लें, एक आखिरी सवाल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस प्रकार से पंचमुखी शिक्षा को एम्फसाइज किया है, किस प्रकार से जोर दिया गया? राजीव सर। देखिए, ये बहुत अच्छी बात हुई है कि पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी आ गई है, और इसमें एक तो इनोवेशन पे बहुत विशेष ध्यान दिया गया है कि बच्चा जो है रोट लर्निंग से बाहर निकले और उसकी जो दूसरी क्रिएटिव क्षमताएं हैं वो बढ़े। साथ में करिकुलम में फ्लेक्सिबिलिटी आए, तो हम बच्चों को एक नैरो से निकाल के बाहर निकाल के एक बड़े करिकुलम के साथ ले जाएं। साथ में उसका जो प्रैक्टिकल काम है और उसको इनोवेशन के साथ जोड़ा भी गया है, वो भी साथ में सीखे। तो शिक्षा नीति के रूप में, और उसमें वैल्यू एजुकेशन को भी बहुत स्ट्रेस दिया है। तो उसके जो तत्व हैं पंचमुखी शिक्षा के, वो उसमें आ गए हैं। अब उसको कैसे कार्यान्वयन किया जाए, कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, इस पे काफी सोच विचार चल रहा है। और इसमें मुझे लगता है कि अगर शिक्षा संस्था और शिक्षा संस्था के प्रमुख, चाहे वाइस चांसलर्स हों, चाहे प्रिंसिपल्स हों, उनके स्तर पर इसको अगर सीरियसली इस पे काम किया जाए तो हम बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। और मुझे आशा भी है कि ऐसा होगा, और पहले वो संस्थाएं आगे जो इस पे काम करेंगी वो आगे निकलेंगी, और बाद में सब इसके पीछे जरूर आएंगे, क्योंकि इससे सब लाभ दिखाई देगा, जो व्यक्ति के लिए भी, छात्र के लिए भी होगा और पूरे देश के लिए भी होगा। जी, एक बेहतरीन डॉक्यूमेंट ब्लूप्रिंट तैयार है। अब उसको डिकोड करके और इम्प्लीमेंटेशन के लिए आई थिंक ब्रेनस्टॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन लेवल पर होनी जरूरी है, लोकल नीड्स को समझते हुए, अपने विद्यार्थियों को समझते हुए, अपने आसपास के माहौल को समझते हुए। इना जी, आपका वर्जन लेना चाहूँगा एनईपी और पंचमुखी शिक्षा। ये मैं तो कहूँगी सरकार की बहुत अच्छी पहल है। ये शायद बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जो पहले की हमारी शिक्षा नीति आई है वो कुछ हद तक पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि ये शिक्षा नीति जरूर इम्प्लीमेंट हो, ताकि हमारे भारत का, हमारे देश का बहुत अच्छे से चहुमुखी पंचमुखी विकास उनका हो। देखिए कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट से काम नहीं चल सकता, मतलब डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए कि उनमें कैरेक्टर बिल्डिंग भी हो। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ साथ कैरेक्टर बिल्डिंग भी स्टूडेंट्स की हो, चरित्र निर्माण उनका हो, तभी वो आगे अच्छा कर सकते हैं। मैं कहना चाहूंगी जैसे education without vision is waste, and education without value is crime, and education without mission is a life burden. कहना चाहिए कि एटॉमिक पावर वाला नेशन जो है वो
पावरफुल नहीं माना जाता, जिसमें कैरेक्टर बिल्डिंग हो किसी स्टूडेंट्स की और यंग्स की और उसके लोगों की, वही नेशन कहना चाहिए पावरफुल होना चाहिए। यही मैं कहना चाहूंगी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ अगर नई शिक्षा नीति अगर इम्प्लीमेंट होती है और हमारी सभी शिक्षण संस्थाएं उसको बहुत कहना चाहिए सीरियसली उसको फॉलो करती हैं, तो निस्संदेह एक बेहतर भारत का निर्माण हम कर सकते हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब हमारे उपराष्ट्रपति महोदय वेंकैया नायडू जी वनस्थली आए थे, तो उन्होंने कहा था कि नए भारत का निर्माण वनस्थली से होकर गुजरता है। वो अपनी पंचमुखी शिक्षा से और शिक्षा प्रक्रिया से बहुत प्रभावित हुए थे। और जो उस तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थे वो वनस्थली आए थे, रमेश चंद्र पोखरियाल जी निशंक, वो भी बहुत प्रभावित हुए थे। और उस समय नई एजुकेशन पॉलिसी का निर्माण हो रहा था। तो जो आदित्य शास्त्री जी है उनको भी इसमें सम्मिलित किया गया था, इसकी मातृ सभा सदस्य में। तो बहुत खुशी होगी अगर भारत हमारा एक कहना चाहिए जिसको कहा जाता है कि विश्व गुरु अगर बन के निकलता है। डेफिनेटली पंचमुखी शिक्षा सर्वांगीण विकास के माध्यम से अगर सभी संस्थाएं इसको आत्मसात करती हैं, तो निस्संदेह हमारा देश एक सर्वोपरि और सबसे अग्रणी देश के रूप में सम्मिलित होगा। जी, थैंक यू। अब कुछ चुनिंदा सवाल दर्शकों से। राजीव सर आपसे, रिलेवेंस ऑफ पंचमुखी शिक्षा इन दिस टेक्नोलॉजी ड्रिवन डे टू डे लाइफ। इस पे हम लोगों ने खूब बात की है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन लाइफ, टेक्नोलॉजी जो है गति बढ़ाती है, ये हमें ध्यान रहे। वो हमको रास्ता नहीं दिखाती है, रास्ता हमें खुद ही ढूंढना होगा। किधर हम जाएं, किस दिशा में जाएं, ये कार या टेक्नोलॉजी तय नहीं करेगी। वो तो जिस तरफ ले जाओगे उधर जाएगी। अगर हम उसको तेज चला के गलत दिशा में चले जाएंगे तो उतनी ही दूर गलत जगह पहुंच जाएंगे। तो टेक्नोलॉजी जो है हमें गति देती है, दिशा नहीं देती है। दिशा तो हमको पंचमुखी और एक होलिस्टिक एजुकेशन के माध्यम से, एक होलिस्टिक समझ के माध्यम से हमें मिलेगी। हम अपनी दिशा दे पाएंगे। जी, क्योंकि दिशा बुद्धि का काम है और टेक्नोलॉजी सिर्फ एक एड है, एक हेल्पिंग टूल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कि जैसे आप कैलकुलेटर यूज करते हैं, पहले आप अपने मन से अपने पुराना सीखा हुआ जो मेथोडोलॉजी थी उससे कैलकुलेट करते थे, तो कैलकुलेशन आपकी थोड़ा फास्ट हो गई, तो एक्यूरेसी थोड़ा बढ़ गई बस, लेकिन वो सब्स्टिट्यूट नहीं है। किस तरह से हम टेक्निकल एजुकेशन में खास तौर से, क्योंकि ओरिएंटेशन ज्यादातर विद्यार्थियों का सिर्फ टेक्नोलॉजी और स्किल लर्निंग पर ही फोकस होता है, हाउ कैन वी हेल्प स्टूडेंट्स टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी एंड शो देम द पाथ ऑफ हैप्पीनेस इन लाइफ, स्पेशली इन द टेक्नोलॉजी एरा, आई मीन टेक्नोलॉजिकल स्टूडेंट्स? नहीं, इसमें मैंने जैसे अभी एक कोर्स पढ़ाया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एथिक्स, और उसमें ऐसे ऐसे सवाल उठ खड़े हुए हैं जो टेक्नोलॉजी के कारण अब उसको समझना और आवश्यक हो गया है। तो मुझे लगता है कि हमें अपनी शिक्षा में इन सब चीज़ों को शामिल करना चाहिए, और पंचमुखी में वो है ही। मॉरल एजुकेशन, स्पिरिचुअल, वो एक मॉरल एंड लार्जर अंडरस्टैंडिंग की बात है, होलसम अंडरस्टैंडिंग की बात है। तो उसके आधार पे हम काम करेंगे तो हमारी टेक्नोलॉजी को हम सही दिशा दे पाएंगे, उसको सही रूप से उसका उपयोग भी कर पाएंगे। सवाल और भी हैं, लेकिन अभी समय हो चला है और मुझे लगता है कि आज का ये रोचक और सार्थक संवाद हमें आज यहीं रोकना होगा। और इस उम्मीद के साथ कि दर्शकों के साथ जो हमने बाहर लाने की कोशिश की है, जो बिंदु छूने की कोशिश की है, काफ़ी हद तक हम उसमें सफल रहे होंगे। स्टिल देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर नेक्स्ट सेशन, और मैं आप दोनों eminent speakers, as a good human being, as a role model for society, I extend my gratitude for accepting our request to be in the show and being with us for a long duration hour of more than 1 hour. And with the note that next time again we'll meet with a new topic, and you'll again extend your cooperation to be with us. और सारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें इस लिंक के जरिए जुड़े हैं, जो यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं या फेसबुक के जरिए जुड़े हैं। इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग 1-2 दिन बाद दीत्या की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी, ditya.education। और आज के लिए बस इतना ही, और जो रजिस्टर्ड यूजर्स हैं वो अपना सर्टिफिकेट गिवन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू अगेन। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।